Department of Mathematics MB Government PG College welcomes you in online classes, and today's topic is critical path analysis. We have seen in older videos about the network analysis, which played a very important role in various transportation systems like road network, railway network, pipelines, and in transportation assignments problems. And we have various jobs which we can done by network analysis, but government and in industrial establishment always plan new project for future development and expansions. These projects are of big size and great complexity, and all these projects need more survey in market and huge expenditure and time and management. Thus we have to find some strategy so that the project finish in time within a lowest cost. And this is the main aim of our critical path analysis or network analysis within a budgeted cost and technical specification, and also the satisfaction of the end user. So every time we are doing an experiment and finding a new way for network analysis for planning, scheduling, and controlling. So here we have the two techniques in critical path analysis. First one is critical path method, and second one is project evaluation and review technique. Now CPM and PERT जो होता है, that is जो ये डेवलप हुआ था, one is totally based on industrial purpose and other is for military purpose. At that time CPM was developed in 1957 by J.E. Kelly and M.R. Walker, and PERT was developed in 1958 by for the Polaris missile, developed in 58 by US Navy. And CPM is mainly used for construction projects and PERT mainly used for research and development projects. The major difference between these two is जो CPM होता है, that is the deterministic approach. उसका nature है deterministic approach है उसकी, means उसमें activities की timing fix दी हुई है आपको, within different activities time limit में perform करके and project को complete करना है, values आपको given है. But in PERT we have a probabilistic approach. We have given the optimistic time, pessimistic time, most likely time, एंड देन उसके बाद हम पर्ट से जो प्रोबेबिलिटी टाइप टाइम्स दिए हुए हैं उनको हम फाइंड आउट करेंगे, एंड देन उसको फिर देन हम पर्ट को सीपीएम में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं. वेरियस एप्लीकेशंस मैंने आपको बताई थी, मेंटेनेंस ऑफ एयरप्लेन, ऑयल रिफाइनरी, बिल्डिंग, हाईवे, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, कैनाल सिस्टम, स्पेस फ्लाइट्स, ये सब इसकी एप्लीकेशंस है. नाउ एक एग्जांपल से हम सीपीएम को समझते हैं कि फाइंड द क्रिटिकल पाथ फॉर द फॉलोइंग नेटवर्क. एक आपको नेटवर्क दिया हुआ है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ए सोर्स नोड हो गया, एंड देन आई टर्मिनल आपको दिया हुआ है, डेस्टिनेशन आपको दिया है. वी हैव टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ बिटवीन ए टू आई. तो इसमें क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम नोड ए को हम कंसिडर करते हैं, यहाँ से हम इसके लिंक वगैरह चेक करते हैं. मीन्स ए नोड से हमारे कितने लिंक हैं, दो लिंक हैं, ए से बी है, ए से डी है. तो इसमें हम वी हैव फाइंड आउट द डिस्टेंस. तो ए से बी, ए को हमने जीरो मान लिया शुरू में, इसको हमने जीरो इनिशियलाइज पुट कर दिया. देन ए से बी में जीरो प्लस नाइन, नाइन हो गया. ए से डी में जीरो प्लस थ्री, थ्री हो गया. सम ऑफ लेवल हमने कर दिया. लिंक अब जो मैक्सिमम लिंक है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया, तो मैक्सिमम ए बी है, तो हमने ये वाला पाथ सिलेक्ट कर लिया ए बी. देन फिर हम बी में गए, बी से फिर अगेन इट कनेक्टेड विद सी और डी. बी से सी भी कनेक्ट है, बी से डी भी कनेक्ट है, तो सम ऑफ लेवल क्या हो जाएगा, बी से सी के केस में 9 प्लस 4 13, और बी से डी में कितना हो जाएगा, 9 प्लस 2 11. तो जो मैक्सिमम होगा उसको आप सिलेक्ट करोगे. फिर अगेन हम मैक्सिमम इसमें देखेंगे, तो हमने बी से डी देखा 11 था, बी से सी 9 प्लस 4 13, तो मैक्सिमम हेयर यहाँ सी आ गया, तो हमने 13 सिलेक्ट कर लिया. अब यहाँ पे हमारा सी में कितना हो गया, 13 मैक्सिमम हो गया. अगेन अब सी से डी भी कनेक्टेड है, सी से जी भी कनेक्टेड है, दो कनेक्टेड है यहाँ पे. तो 13 प्लस 5 हम जी के लिए लिखेंगे, 13 प्लस 8 हम डी के लिए लिखेंगे. तो यहाँ सी जी 13 प्लस 5 18 हो गया, सी डी 13 प्लस 8 21 हो गया. इन दोनों में मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है,
तो मैक्सिमम यहाँ पे डी आ गया जिसका हमने 21 वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे मैक्सिमम डी निकाल लिया हमने, मीन्स हमारा पाथ कौन सा हो गया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, और मैक्सिमम यहाँ पे हमने 21 लिख दिया। अब अगेन डी से एफ कनेक्टेड है, डी से ई भी कनेक्टेड है, दो कनेक्टेड है, फिर हम इसका पाथ निकालेंगे। डी से ई 21 प्लस 2, उसके आगे ही बढ़ेंगे, डी में 21 था मैक्सिमम, तो 21 प्लस 2 23 आ गया, डीएफ में 21 प्लस 7 28 आ गया। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, एफ नोड वाला मैक्सिमम है 28 का, तो हमने एफ नोड सिलेक्ट कर लिया। अब फिर हम देखते हैं पिक्चर में, फिगर में, कि एफ से केवल एच नोड कनेक्टेड है, तो हमने एफ एच निकाल लिया, तो इसमें हमें यही मैक्सिमम मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे, तो एफ से एच नोड में आ गए। देन एच नोड से फिर अगेन हमने क्या देखा कि एच नोड से जी भी कनेक्टेड है, आई भी कनेक्टेड है, तो इसमें हम जी और आई का एच नोड से हम निकालेंगे, तो एच ई, एच जी, एच आई, ये तीनों हम फाइंड आउट करेंगे। एच ई, सॉरी यहाँ पे एच ई, एच ई पिक्चर में आया नहीं है, एच ई, एच आई, एच जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एच ई कितना हो गया 30 प्लस, ये आपको एच ई इसको ज्वाइन कर लेना, एच ई ये 4 दिया हुआ है, एच ई आपको ये 4 दिया हुआ है, ये 3 है, ये 6 है, तो हमने एच ई इसमें फिर हम मैक्सिमम निकालेंगे, तो मैक्सिमम 36 आ गया, तो टोटल हमारा 36 हो गया। तो और हम आई मतलब डेस्टिनेशन में पहुंच गए। तो यहां से हमारा क्रिटिकल पाथ क्या हो गया, सबसे पहले हमने ए सिलेक्ट किया था, देन बी हमारा आया था, देन सी आया था, फिर डी, देन एफ, देन एच, देन आई, और टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया 36। तो इस टाइप से वी कैन फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। देन क्रिटिकल पाथ के बाद हम अगर इसमें क्रिटिकल पाथ के साथ साथ हम टाइम भी इसमें फाइंड आउट करते हैं, कितना टाइम हमें लगेगा, तो टाइम के लिए वी हैव सम टर्मिनोलॉजी जिसको हम डिस्कस करते हैं। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इट इज द अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट। कोई एक्टिविटी आई है, जे एक्टिविटी दी है, ये डिस्टेंस या उसका वेट दिया हुआ है, तो ईएसटी जो हम निकालेंगे इवेंट जे के लिए, ईएसटी क्या हो जाएगा, आई का इवेंट प्लस ये ड्यूरेशन, ईएसटी प्लस एक्स। एक हम फाइंड आउट करते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम व्हेन एन एक्टिविटी शुड एंड, जब एक्टिविटी खत्म हो जाती है हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको हम राइट से लेफ्ट की ओर नेटवर्क में कैलकुलेट करते हैं, एंड वी फाइंड द मिनिमम वैल्यू। सपोज जे से 3 नोड कनेक्टेड हैं, जे से आई, जे से के, जे से एम, तो इसमें हम मिनिमम फाइंड आउट करेंगे। पहले तो हम एक्टिविटी निकालेंगे, सपोज जे एक्टिविटी 40 में कंप्लीट होती है, मीन्स यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में 40 आ गया। अब हम राइट टू लेफ्ट चलेंगे, तो 40 इसका कंप्लीशन टाइम है, 40 माइनस 2 आई में जाने के लिए 38, 40 माइनस 5 के में जाने के लिए, और जे से एम में जाने में 40 माइनस 3, तो इसमें मिनिमम हम फाइंड आउट करेंगे। मिनिमम इज एयर के, तो हम इसको नोड के कंसिडर करेंगे, मीन्स जब हम बैक आएंगे तो पीछे से हम क्या निकालेंगे, लेटेस्ट फिनिश टाइम निकालेंगे। इसी टाइप से अर्लीस्ट फिनिश टाइम होता है। अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और प्लस ड्यूरेशन एक्टिविटी हम निकालते हैं। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या होता है, एलएफटी जो हमने निकाला था माइनस ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी। इसके अलावा कुछ और हम पढ़ते हैं इसमें, टोटल प्रोजेक्ट टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड, ये तो पहले से हम जान रहे हैं। स्लैग और फ्लोट क्या होता है, एक ये भी टर्म्स यूज हो रही है। इट मींस द फ्रीडम फॉर शेड्यूलिंग टू स्टार्ट द इवेंट, मींस हम इवेंट को स्टार्ट करना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ टाइम बाय विच कंप्लीशन ऑफ एन एक्टिविटी कुड बी डिलेड बियॉन्ड द अर्लीस्ट एक्सपेक्टेशन कंप्लीशन टाइम। मींस कोई एक्टिविटी डिले होती है बियॉन्ड द, जैसे एक्सपेक्टेड टाइम, जैसे हमने कहा कि कोई कंस्ट्रक्शन में सपोज हमें फाउंडेशन बनानी है, फाउंडेशन के लिए हमने 10 डेज रखे हैं, लेकिन अगर वो एक्टिविटी 10 डेज में कंप्लीट नहीं होती है, वो आगे शिफ्ट होती है, तो वो जो टाइम डिले होगा उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। कंप्लीशन ऑफ एक्टिविटी कुड बी डिलेड, लेकिन जब प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होगा वो विदाउट अफेक्टिंग द टाइम ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीशन, तो उसको जो वो टाइम जो डिले होता है, एक एक्टिविटी में जो टाइम डिले होता है उसको स्लैग या फ्लोट कहते हैं। स्लैग हम कैसे निकालते हैं, अभी ऊपर हमने देखा एल एफ टी माइनस ई एस टी, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लास्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम से। टोटल फ्लोट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एल जे माइनस ई आई माइनस टी आई जे, एल जे स्टार्ट टाइम्स है, ये फिनिश टाइम है, अर्लीस्ट लेटेस्ट टाइम है, एल एफ टी माइनस ई एफ टी से हम निकालते हैं। फ्री फ्लोट हम निकालते हैं टोटल फ्लोट माइनस स्लैक ऑफ हेड इवेंट,
इंडिपेंडेंट फ्लोट हम निकालते हैं, फ्री फ्लोट माइनस लैग टाइम ऑफ टेल इवेंट। तो क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, अभी हमने देखा कि वेरियस एक्टिविटी को हम ब्रेक करते हैं और हर एक का अगर टाइम दिया हुआ है, टाइम एक्टिविटी हम निकालेंगे, इसीलिए इसको डिटर्मिनिस्टिक कहते हैं। एंड इसमें अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल फ्लोट कैलकुलेट करेंगे एंड आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एक्टिविटीज हम कैलकुलेट करेंगे और उस हिसाब से फिर टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन हमारी आ जाएगी। जैसे हम एक एग्जांपल करते हैं, कैलकुलेट द वेरियस टाइम एस्टिमेट्स। अब हमें डिफरेंट टाइम एस्टिमेट्स निकालने हैं। ए से सी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी से डी कनेक्टेड है, बी से ई एंड डी से एफ, ई से भी एफ है एंड देन एफ से जी। तो ये सोर्स हो गया ए एंड ये टर्मिनल नोड हो गया। अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है, फॉर इवेंट ए इज टेकन एज 0। तो सबसे पहले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो गया, इवेंट ए का शुरू में हमने इसको 0 मान लिया। देन नोड बी और सी हम कैलकुलेट करेंगे। तो एट नोड ए ईएसटी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब नोड बी में हम आते हैं, ये है नोड बी। नोड बी में अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो गया, 0 + 15, तो ये 15 आ गया नोड बी में। नोड सी में क्या है, अब हम नोड सी में देखते हैं। नोड सी में हमारे दो लिंक आ रहे हैं इसमें, एक ए से सी आ रहा है, एक बी से सी आ रहा है। तो जो ए से सी है वो इसको 0 माना था, तो ए से सी तो हमने सीधे 15 लिख दिया। बट जो बी से सी आ रहा है वो क्या है, पहले ए से बी 15 हो गया प्लस 3 हो गया, तो ये कितना हो गया, 18 हो गया। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो हमने क्या लिख दिया, मैक्सिमम 18 हमने लिख दिया। अभी हमने जैसे क्रिटिकल पाथ निकाला था सेम वैसे निकाल रहे हैं। एरो आपको दिए हैं, डायरेक्टेड ग्राफ की भी हमने बात की थी बीच में, तो डायरेक्टेड ग्राफ के जैसे हम इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। देन उसके बाद हमारे मैक्सिमम सी में 18 आ गया। एट नोड डी में, अब हम नोड डी की बात करते हैं। तो नोड डी में हम क्या देख रहे हैं, नोड डी में सी से कनेक्टेड है, सी से अब एफ भी कनेक्टेड है, डी भी कनेक्टेड है। तो सी से सी में हमारा एफ और डी दोनों कनेक्टेड है। तो नोड सी में हम पहुंच गए थे और सी से फिर हमने डी कनेक्ट कर लिया। सी से डी क्या है, 8 सॉरी, क्योंकि मैक्सिमम 18 है नोड सी में, तो हमने मैक्सिमम लिया। अब नोड डी में हमारा क्या है, हम हर एक नोड में कैलकुलेट कर रहे हैं। सी डी में हमारा नोड क्या हो गया, 26 हो गया, सीधे ही आ गया। नोड ई की हम बात करते हैं, नोड ई में क्या हो रहा है, नोड ई में हमारे पास कहाँ से, डी से भी आ सकते हैं, बी से आ सकते हैं और हमारा ई से एफ की ओर हम जा रहे हैं। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारा क्या हो जाएगा, एक तो डी ई से आ रहे हैं हम, नोड ई में कहाँ से आ रहे हैं, डी ई से आ रहे हैं, एक आ रहे हैं बी ई से। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारा डी ई से अगर हम आएंगे तो कितना हो जाएगा, 26 था डी में, +1 27, बी से आएंगे तो 15 + 5 20, इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, 27, तो हमने इसको 27 लिख दिया। एफ नोड में इसी टाइप से हम एफ नोड में देखेंगे। एफ नोड में हम कहाँ से आ रहे हैं, डी से भी आ रहे हैं, सी से भी आ रहे हैं, ई से भी आ रहे हैं। इनमें हम मैक्सिमम फाइंड आउट करेंगे। तो डी से एफ की ओर आएंगे तो डी कितना था पहले, 26 था, +14 ये आ गया। सी से आएंगे तो सी एफ आ गया एंड ई एफ से आ गए। तो इस टाइप से हमने मैक्सिमम 40 इसमें कैलकुलेट कर लिया। ऐसे ही नोड जी में जब हम आएंगे तो नोड जी में हमारा क्या हो गया, नोड जी में हमारा एफ से आ रहे हैं, तो एक ही पाथ है इसमें, तो हमने एफ से 54 आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट विल बी 54 यूनिट। तो ये हमने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाला इस क्वेश्चंस में। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाला हमने, पहले नोड ए लिया, ए से जितने लिंक जा रहे हैं ए को 0 मान लिया। नोड ए में तो 0 हो गया अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। बी का स्टार्ट टाइम क्या हो गया, 0 + 15 हो गया। सी का क्या हो गया, 0 + 15 हो गया। डी का क्या हो गया, फिर जो आपका मैक्सिमम था वो टाइम हमने ले लिया यहाँ से। डी में सिंगल नोड था, डी में कहाँ से आ रहा था, डी में केवल सी से आ रहा था, तो हमने केवल सी से लिया। तो इस टाइप से हमने ये इसको कैलकुलेट किया ईएसटी को। अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में ईएफटी क्रिटिकल पाथ वगैरह कैलकुलेट करेंगे। वीडियो कैसा लगा आप बताइए। थैंक यू।